Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you'd be fine. I'm here with the poem London's Summer Morning. It's an interesting poem of your textbook. Before moving towards the explanation and reading and the summary of the poem, let's discuss something about the poet. The poet was Mary Robinson. She lived in England, in the busy cities of Bristol and London. She also lived for a time in France and Germany. So this poem is basically about the London's summer morning, where she used to live in her last days. And she was born in 1758. Some says she was born in 1748. And she enjoyed poetry from the age of 7 and started working first as a teacher and then as an actress from the age of 14. So basically, she did her poetry for 7 years, from the age of 7 to age of 14. And then Robinson died in 1800 at the age of 42 or 43 in December. Having written many plays, poems, and novels, she was a celebrity, gossiped about in newspapers, famous for her acting and her writing. In the late 1700s, London was the center of European and world trade and full of people working hard for their livings, as this happens in the most metropolitan cities. So in this poem, the poet uses lists and lots of description to convey the sights and sounds of London. So we are going to learn about things that the people of metropolitan cities used to of, and the days and nights of a busy city or the large cities, that how do people live there and what are their activities. Now let's discuss the word meanings given over here in the box. Bandbox, a cylindrical box with a lid used to carry lighter items of clothing. So basically, a jewel box or a box made of wood is a bandbox. Base domestic spoiler means a thief, chor. Canvas awning, a piece of a strong material supported by a frame that provides protection from the weather. So it's the protection that safeguards from the weather. Coopers, barrel makers. Enthrall, to capture the attention of someone. Long ago the word also meant to enslave someone. किसी चीज को कैच करना, ट्रैप कर लेना, ठीक है, या किसी को मरऊब करना, किसी को रागिब करना, किसी को मुतासिर करना, that is called enthrall. Gay merchandise, brightly colored, cheerful looking goods. बड़े खूबसूरत, हसीनो जमील और अट्रैक्टिव जो गुड्स होते हैं, जो बिकने की चीजें होती हैं, उसको कहते हैं गे मर्चेंडाइज. Green abyss. An abyss is a deep pit. The image of a green pit is used here to mean that the value of goods decreases. Abyss means पाताल, गहराई, गड्ढा, ठीक है. और ग्रीन से यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं खाई, जहां पर काई वगैरह लग जाती है, तो उसको कहा जाता है ग्रीन एबिस. यहाँ पर मुराद ये है कि जो चीजें हैं बिकने वाली, उनकी कीमतों का गिर जाना, कमी की तरफ वाक़ हो जाना. Hackney coaches, horse-drawn carriages for hire. In earlier days, we used to have these sort of vehicles. They were basically carts, horse-drawn carts, or camel carts, or donkey carts. They were basically the vehicles in olden days, and basically this poem has been written in late 70s. So then and there we were not having any sort of vehicles that we have in present time. Impervious, not affected by something. Something remains unaffected. Limy snare. Lime was the name of a sticky substance that used to be spread on paper. It's like you can say glue or something sticky, or sticks covered to catch insects. A snare is a trap. So basically, if you people have seen a mouse trap these days, it was just like that. Limy snare means to catch some insects. Neat girl, a maid or servant. Pastry dainties, delicate looking cakes and pastries. मनपसंद खाने, जो चीज आपको पसंद आए वो चीज आप हासिल कर लें, that are called dainties. Pilfered, stolen. Pot boy, a youth employed to serve drinks or clear up in an inn. किसी जगह पर, किसी होटल में, किसी
खाने पीने की जो जगह होती है वहां पर जो छोटे बच्चे होते हैं सफाई के लिए एम्प्लॉयड होते हैं उनको कहा जाता है पॉट बॉय. Apprentice, someone who is learning a trade from a skilled employer. ठीक है, ट्रेनी को कहा जाता है, या जो बिगिनर्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है apprentice. Proclaims, announces clearly, ऐलान कर देना. Ruddy, having a healthy reddish color to the skin, सुर्ख सफेद होना. Sooty, covered with or colored like soot. Soot is a black powdery or a flaky substance that comes from burning or handling coal. कभी अगर कोई बर्तन वगैरह जल गया हो और अगर आप उसको हाथ लगा लें या वो चेहरे कपड़ों पे लग जाए तो जो कालक होती है उसको कहा जाता है सूटी. स्प्रूस एंड ट्रिम, नीट एंड स्मार्ट इन अपीयरेंस. स्प्रूस कहते हैं कोई चीज व्हाइट इन कलर, सफेद. ठीक है, तो कोई चीज साफ सुथरी, सफेद, खूबसूरत हो उसको कहते हैं स्प्रूस एंड ट्रिम. Sultry means hot and humid weather. It's weather when there is no air in the surroundings. तो जब हब्स हो जाता है उसको हम कहते हैं sultry weather. Venturous means willing to take risk. And wagons, the old spelling has double G's, but now we used to write it as WAGON with one G. So wagons are horse-drawn carts. Again, it is another vehicle that was related to horse because we used to have carts in the olden days. So it could be wagons or it could be hackney coaches, either horse-drawn carriages for hire or horse-drawn carts. ठीक है? Okay, now let's move towards the poem. But before starting the reading part, let me just tell you the summary of this poem. It's a typical summer morning of a metropolitan city, London, and it's a city, a very busy one of Great Britain, and it has vivid and realistic description given by Miss Robinson, and people who lives in metropolitan cities or busy cities or large cities can relate their living with this poem. It's very much close to what happens in large cities, and she has used both positive and negative language in the city because we used to have both aspects in such cities. There are some merits and demerits of living in such sort of cities. So London was basically a busy, a loudy and noisy, densely populated city of Great Britain. And in the early morning, it was cloudy and gloomy, both showing that it was a busy city and people used to wake up early for their living to get their bread and butter. And merchants called out trades. Not only humans but insects are part of this city. So she has given us a vast picture of a great city, London. Okay? As you can see in the picture over here, just after the sun has risen, the people are on the streets making their living, right? They are busy in selling and buying the goods. Who has not walked to list the busy sounds of summer's morning in the sultry smoke of noisy London? On the pavement hot, the sooty chimney boy with dingy face and tattered covering shrilly bawls his trays, rousing the sleepy housemaid. So, who has not waked? कौन नहीं उठता है to list the busy sounds of summer morning? Who can list the busy sounds, number of sounds made in the summer's morning? यानी गर्मियों की सुबह है और कौन नहीं जागेगा सुबह सुबह की इतनी सारी काउंटलेस आवाजों को सुनकर. ठीक है, इन द सल्ट्री स्मोक ऑफ नॉइजी लंडन, इस आवाज वाले शहर में जहां पर हब्स है, गर्मी की शिद्दत है, तो कौन है ऐसा जो अभी तक नहीं जागा. ऑन द पेवमेंट, यहाँ पर जो पाथवे है, जो फर्श है, फुटपाथ है. हॉट, द सूटी चिमनी बॉय, द डार्क एंड ग्लूमी बॉय हु यूज टू वर्क इन चिमनी. चिमनी कहते हैं आतिशदान को. ठीक है, जो आपके वेंट होते हैं ना, जहां से क्रॉसिंग होती है
स्मोक वगैरह की, उसको कहा जाता है विद डिंजी फेस, डिम एंड डल, यानी जिसका चेहरा बिल्कुल काला हो गया है कोयले की वजह से, ठीक है। एंड टैटर्ड कवरिंग, और उसके जो कपड़े हैं वो फट गए हैं, ओल्ड एंड टॉर्न, श्रीली बॉल्स हिज ट्रेड, वो तेज आवाज में, लाउड हाई पिच्ड जो है वो आवाज में आवाजें लगाता है, कॉल्स आउट हिज ट्रेड, अपनी जो भी चीजें बेच रहा है वो तो बहुत चीख चीख के आवाजें लगा रहा है, लाइक ऑल कॉन्फेक्शनर्स डू, ठीक है। राउजिंग द स्लीपी हाउस मेड, इससे क्या हुआ, ये एक जो सोती हुई मेड है उसके लिए बड़ा एक्साइटिंग है, इंस्पायरिंग है, और वो सोते से जाग जाती है। एट द डोर द मिल्क पेल rattles and the tinkling bell proclaims the dustman's office while the street is lost in cloud impervious. दरवाजे पर दूध वाला भी आ गया है, उसकी भी जो बकेट है, कंटेनर्स है जिसमें वो दूध लेकर आया है, उसके खड़खड़ाहट की आवाजें आ रही हैं और बेल्स बजने की आवाजें आ रही हैं, ठीक है। मतलब जो डिफरेंट बर्तनों की आवाजें हैं, डिफरेंट बेल्स की आवाजें हैं, वो सब भी सुबह सुबह बजने लगती हैं। इसी में जो गार्बेज मैन है, डस्टमैन मीन्स गार्बेज मैन है, ही प्रोक्लेम्स, वो ऐलान करता है कि अपने अपने कचरे उसके हवाले कर दिए जाएं। While the street is lost in clouds impervious, जबकि जो स्ट्रीट है वो पूरी तरह से क्लाउड्स में घिरी हुई है, यानी लोगों के शोर से वो पूरी तरह गहमा गहमी का शिकार है। Now begins the din of hackney coaches, wagons, carts, while Timmins sharp and noisy trunk makers, knife grinders, coopers, squeaking cork cutters. So now begins the din of hackney coaches. अब आवाज शुरू हो जाती है इसके फौरन बाद किसकी, हैकनी कोचेस की, किराए की गाड़ियों की, जो किराए पे दी जाती हैं गाड़ियां, कि आप को इतने पैसों में पूरे दिन के लिए गाड़ी दी जाती है। तो यहाँ पर वो गाड़ियों की आवाजें आना शुरू हो गई, वैगन्स की आवाजें आना शुरू हो गई, कार्ट्स की आवाजें आना शुरू हो गई कि हाँ भाई आपको कहाँ जो है वो ट्रेवल करना है, कहाँ जाना है, आइए हम आपको छोड़ देते हैं। तो ये सब आवाजें भी लगना शुरू हो गई। वाइल टिन मैन्स शॉप, इतने में ही जो प्लम्बर्स हैं जो टिन का काम करते हैं, इसके अलावा एंड नॉइजी ट्रंक मेकर्स, वो जो लार्ज बॉक्सेस बनाते हैं, नाइफ ग्राइंडर्स जो छुरियां तेज करते हैं, कूपर्स जो डब्बा साज हैं, बड़े बड़े डब्बे बनाते हैं, बड़े बड़े ट्रंक बनाते हैं, ट्रंक मेकर्स हैं, ठीक है, जो बैरल मेकर्स हैं, स्क्वीकिंग कॉर्क कटर्स जो कॉर्क बनाते हैं, कॉर्क किसको कहते हैं, बॉटल कैप्स, ठीक है, वो जो उसमें से जोर जोर से आवाजें आ रही हैं, फ्रूट बैरोज एंड दी हंगर गिविंग क्राइज ऑफ वेजिटेबल वेंडर्स, इसी तरह से फलों के जो ठेले हैं, पुश कार्ट्स हैं, और जो हंगर गिविंग क्राइज हैं वेजिटेबल वेंडर्स की, वेजिटेबल सेलर्स की, यानी कि फल और सब्जियों वाले हैं, ठीक है, फिल द एयर, वो सब भी अपनी आवाजों से पूरे सराउंडिंग्स को भर रहे हैं, यानी उनकी आवाजें भी चारों तरफ फैली हुई हैं। ये उन सब लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो बड़े बड़े शहरों में सुबह सुबह जाग जाते हैं और अपने अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। तो किस किस तरह की आवाजें आती हैं, किस किस तरह का शोर होता है, यहाँ पर उन सब को पिक्चराइज किया है, ठीक है। Now every shop displays its varied trade, ठीक है। इसके बाद अब तमाम दुकान वाले अपना जो मुख्तलिफ किस्म का ट्रेड है, तिजारत है, उसका डिस्प्ले करते हैं, उसको शो करते हैं। क्या क्या होता है भाई, एंड द फ्रेश स्प्रिंकल्ड पेवमेंट कूल्स द फीट, और जो पाथवे के ऊपर, जो फुटपाथ के ऊपर अभी सुबह सुबह पानी का छिड़काव हुआ है तो वो कदमों को ठंडा कर देता है। ऑफ अर्ली वॉकर्स, जो लोग सुबह सुबह वॉक करते हैं। एट द प्राइवेट डोर द रडी हाउसमेड टूवर्ड्स द बिजी मॉप, किसी के घर के बाहर झाड़ू लगाती हुई एक लड़की, अनॉइंग द स्मार्ट अप्रेंटिस, एक जो ट्रेनी है उसको नाराज कर देती है, उसके पांव पर अपना जो मॉप है उसको चढ़ा देती है, उसका वो छू जाता है। और नीट गर्ल ट्रिपिंग विद बैंड बॉक्स स्लाइटली, या कहीं पर जो मेड है वो किसी डब्बे से टकरा जाती है, उसके ऊपर ट्रिप कर जाती है, उससे उसके ऊपर स्लिप कर जाती है, यानी कि सफाई का काम भी सुबह सुबह शुरू हो गया है।
ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द वर्ड मीनिंग्स ओवर हियर. सल्ट्री कहते हैं हब्स को, पेवमेंट कहते हैं फर्श फुटपाथ, सूटी कहते हैं काजल डार्क, चिमनी कहते हैं आतिशदान वेंट, dingy dim and dull, tattered old and torn, shrilly loud high pitched, balls कहते हैं call out आवाज लगाना, rousing कहते हैं inspiring exciting मजेदार, pale bucket container, rattle कहते हैं sharp knocking sound खड़खड़ाहट घड़घड़ाहट, tinkling कहते हैं ringing, proclaims कहते हैं ऐलान करता है ऐलान करने को. उसके बाद डस्टमैन इज द गार्बेज मैन, इम्पर्वियस मीन्स अनअफेक्टेड, डिन मीन्स लाउड नॉइज, हैकनी कोचेस किराए की गाड़ी, टिन मैन प्लम्बर को कहते हैं, ट्रंक कहते हैं लार्ज बॉक्सेस को, कूपर्स कहते हैं बैरल मेकर डब्बा साज, स्क्वीकिंग कहते हैं लाउड साउंड, कॉर्क कहते हैं बॉटल कैप को, बैरोज कहते हैं पुश कार्ट ठेले वगैरह को, वेंडर्स कहते हैं सेलर को जो बेचने वाले लोग होते हैं, स्प्रिंकल कहते हैं शावर करना स्प्रे करना छिड़क देना. Okay, now the sun darts burning splendor on the glittering pane, save where the canvas awning throws a shade on the gay merchandise. Now spruce and trip in shops, where beauty smiles with industry sits the smart damsel. तो जी अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सूरज की जो रोशनी है, तपिश है, गर्मी है, उसकी शाइनिंग है, उसकी ब्राइटनेस है, और जो स्कॉर्चिंग सन है वो अपनी आबोताब के साथ चढ़ता हुआ चला आ रहा है, यानी कि उसकी गर्मी बढ़ती जा रही है. इट मीन्स नाउ द सन डार्ट्स, अब सूरज तेजी के साथ मूव कर रहा है, बर्निंग स्प्लेंडर अपनी ब्रिलियंट अपीयरेंस के साथ, अपनी चमक दमक के साथ, ऑन द ग्लिटरिंग पेन, कहाँ पर, शीशों के ऊपर, चमकते दमकते शीशों के ऊपर. जब शीशों के ऊपर उसकी रोशनी पड़ेगी तो वो अंदर तक जो है वो चलती चली जाएगी. सेव वेयर द कैनवस ऑनिंग थ्रोज अ शेड, हाँ अलबत्ता जहां पर जो कैनवस है और कैनवस के जो बाउंड्री और उसका जो प्रोटेक्शन है वहां पर एक शेड पड़ता है उसका, ठीक है, यानी इस वक्त सूरज की जो साया होता है वो बनना शुरू हो गया है. ऑन द गे मर्चेंडाइज, गे मर्चेंडाइज कहते हैं खूबसूरत हसीनो जमील बिकने वाली चीजें. नाउ स्प्रूस एंड ट्रिम इन शॉप्स वेयर ब्यूटी स्माइल्स विद इंडस्ट्री, ये इशारा कर रहे हैं अब सैलॉन्स की तरफ और ब्यूटी पार्लर्स की तरफ, जहां पर बैठी है स्मार्ट डेमसल जिसको कहते हैं यंग अनमैरिड गर्ल, ठीक है. वाइल द पैसेंजर पीप्स थ्रू द विंडो, जबकि जो पासर्स बाय हैं गुजरने वाले लोग हैं वो खिड़की के अंदर झांकते हुए देख रहे हैं, वॉचिंग एवरी चार्म, उसकी खूबसूरती को. नाउ पेस्ट्री डेंटिस कैच द आई मिनट ऑफ हमिंग इंसेक्ट्स वाइल द लिमी स्नेयर वेट्स टू एंथ्रिल देम. यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जो जानवर हैं वो भी इसकी जो शहर की रौनकें हैं उससे महसूस हो रही हैं, इसका हिस्सा बन रही हैं. तो जहां पर केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, पेटीज हैं, यानी कि ये सारे जो मीठे मीठे आइटम्स हैं जहां पर वो रखे हुए हैं वहीं पर हमारे पास इंसेक्ट्स भी मौजूद हैं. कौन से, भिनभिनाने वाले, आवाजें प्रोड्यूस करने वाले, जबकि उनके लिए वहां पर लिमी स्नेयर भी रखा है, एक जाल भी बिछाया गया है, एक ट्रैप भी रखा गया है जो चूने से मिला हुआ है, एक स्टिकी सब्सटेंस के साथ है ताकि उनको पकड़ा जा सके अपनी तरफ रागिब करके. Now the lamplighters mounts the tall ladder nimbly ventures to trim the half-filled lamps. अब आ गए लैम्पलाइटर्स, क्योंकि स्ट्रीट के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई होती थी, पहले लैम्पलाइटर्स होते थे, वो अपनी ऊंची लैडर्स के ऊपर चढ़ते हुए निम्बली वेंचरस आगे पीछे बढ़ते हैं. उनकी जो मूवमेंट होती है बड़ी क्विक और अलर्ट होती है और बेखौफ व खतर वो इधर से उधर क्या कर रहे हैं, ट्रिमिंग दी हाफ फिल्ड लैम्प्स, वो लैम्प जो आधे जल के कम हो गए हैं उनकी सफाई कर रहे हैं, उनका जो तेल इधर उधर गिर गया है उसकी सफाई कर रहे हैं. While at his feet the pot boy yells discordant. और दूसरी तरफ एक पॉट बॉय है जो सफाई करने वाला है बर्तनों वगैरह की, वो अजीब व गरीब सी आवाजें निकालता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्टिंग ऑड्स मुख्तलिफ औकात में आवाजें निकालता है, अट्रैक्ट करता है अपने इन की तरफ कि आइए खाना खाइए, यहाँ पर मजे करिए. ऑल अलोंग द सल्ट्री पेवमेंट,
और वहीं पर फुटपाथ के ऊपर द ओल्ड क्लोथ्स मैन क्राइज इन टोन मोनोटोनस. मोनोटोनस मीन्स रिपीटेशियस, डल, बोरिंग, अजीबो गरीब सी आवाज निकालता है जो बोरिंग है, बुरी लगती है कानों को, बार बार रिपीट करने वाली. जैसे कि वेंडरर्स होते हैं वो आवाज लगाते हैं, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, एक ही चीज को रिपीट करते रहते हैं. तो इसी तरह से वहां पर भी एक पुराने फटे कपड़ों में एक इंसान आवाज लगा रहा है. वाइल साइड लॉन्ग व्यूज द एरिया फॉर हिज ट्रैफिक. दूसरी तरफ जो रोड्स हैं उसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है. ठीक है. नाउ द बैग इज स्लाइली ओपन एंड द हाफ वर्न सूट समटाइम्स द pilfered treasure of the base domestic spoiler for one half its worth sinks in the green abyss. तो जी यहाँ पर एक और आपको रंगीनी बता रहे हैं लार्ज सिटीज की, जहाँ पर लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं, कमाने में, और अपने अपने दूसरे कामों में मसरूफ होते हैं. वहीं पर चोरी और डकैती और लोगों को लूट मार के भी काम पूरे जोरों शोर से चल रहे होते हैं. तो एक जो है वो सीक्रेट, उसमें एक बैग खोला जा रहा है और एक आदमी है जिसने हाफ वर्न सूट पहना हुआ है और वो चोरी कर रहा है. जो सामान है उसकी आधी कीमत रह गई है और उसकी जो कीमत है वो कम होती चली जा रही है. द पोर्टर नाउ बियर्स हिज ह्यूज लोड अलोंग द बर्निंग वे. और इसी में एक बेचारा मजदूर है, पोर्टर है, सामान उठाने वाला है, वो अपना बोझा लादे हुए इधर से उधर गर्मी में जो है वो जा रहा है. एंड द पुअर पोएट वेक्स फ्रॉम बिजी ड्रीम्स. और जो पोएट है वो भी अपने ख्वाबों से जाग गई है टू पेंट द समर मॉर्निंग, ताकि वो अपनी पोएट्री को कंप्लीट कर सके. सो दिस वाज द पिक्चर प्रोवाइडेड अस बाय मिस मैरी रॉबिन्सन, and this is the complete picture, almost complete picture of a large city, busy city of London, and it's a picture of summer morning. Let's discuss some of the remaining word meanings. Towards means spin, turn round. Annoying means disturbing. Prentice means learner, trainee. Tripping means to slip, to skip. Bandbox, hat box, or jail box, a box used to keep things like them. Darts means to move somewhere suddenly. Splendor, brilliant appearance. Glittering means shining, twinkle. Pane means sheet of glass. Damsel means young unmarried girl. Dainties means manpasand khane. Humming, sound producing animals. Limi means chuna mila hua or some sticky substance. Snare means trap. Anthril means mutasir karna. Nibbly means quick alert movement. Venturous means muhim joi be khaufo khatar. Trim means to clean. Discordant means at odds, conflicting, monotonous, repetitious, dull, or boring. Sidelong means from one side. Slyly means secretly. Treasure means valuable objects, precious materials. Abyss means gehrai ya khai. So these were some of the word meanings that I'm sharing with you people. Here we have ended up the explanation and summary of the poem. I hope students you would have liked it. Please subscribe to the channel if you are new. Don't forget to press the bell icon, like the video, share it with your friends. Thanks for watching it. Take care. Allah Hafiz.